Jai Shri Krishna to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will do the questions of adjustments of capital of admission of a partner. Okay, but before knowing this concepts, if you don't know the various concepts which are related to this, such as treatment of goodwill, calculation of goodwill, calculation of NPR and sacrificing ratio. Okay, how to make the partner's capital account. Okay, so these are the various concepts which are related to this particular concept, the adjustments of capital. Okay, and how to make the various necessary general interest while preparing the revaluation account. These are the very important topic of this chapter. Okay, so you just go to the description box where I have pasted the links of such videos of these concepts. Okay, so watch the videos thoroughly so that you can understand what we are going to do today. Okay, so let's start the questions. Adjustments of capital. Okay, so let's start the topic. Adjustments of capitals. Okay, so first adjustment is when a new partner is bringing his capital and the old partners adjust their capitals on proportionate basis of new partners capital. ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है एंड ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर जो भी पुराने पार्टनर्स हैं दे विल एडजस्ट देयर कैपिटल्स। सो दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है? क्या कह रहा है वो? जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है, एंड जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। सो ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होती है? जब पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर, एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, दिस इज योर सेकेंड एडजस्टमेंट। इट मीन्स इन द सेकेंड केस इट इज नॉट मेंशन व्हाट द कैपिटल द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग। ठीक है, सो ये आपको गिवन नहीं होगा कि वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। पहले केस में कैपिटल गिवन होगी कि कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है। सेकेंड केस में कैपिटल गिवन नहीं होती है कि जो न्यू पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस जब कैपिटल लेकर आ रहा है। और सेकेंड केस क्या होता है? व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड। लेकर तो आएगा वो कैपिटल, लेकिन मेंशन नहीं होता है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, so when it is not mentioned the amount of new partners capital and he will bring his capital on the basis of old partners adjusted capital। ठीक है, क्या मतलब है? जब पहले वाले केस में क्या है, पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और गिवन होगा। और दूसरी बात कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। And secondly, when it is not mentioned the amount of new partner's capital
ओके, एंड ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल. वो किस बेसिस पर कैपिटल लेकर आएगा? अपनी ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर. ओके, इसके अंदर फर्दर 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, 2 एडजस्टमेंट्स, इसी सेकेंड एडजस्टमेंट के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स हम करके लेकर चलेंगे. एंड दिस इज द सिंगल एडजस्टमेंट, सिंगल इसमें क्वेश्चन रहेगा. ओके, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन. Okay, so I am taking a question number 88 of first adjustment. A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. They admitted C as a partner for 1/4 share. 1/4 share के लिए आ रहा है नया partner. C was to bring 60,000 for his capital. It means capital is given. ठीक है, it means it's our first case. The balance sheet of A and B at 1st April 2019, the date on which C was admitted was. Liabilities and assets are given. Creditors 70,000. Capitals of A and B 50,000 and 80,000. General reserve is also given. It means it will be distributed among the old partners in old ratio. Land and building is given. Plant and machinery stock. Debtors less old provision. Old provision is given 1,000. Investments and cash is also given. Okay. So and the other terms agreed upon were goodwill of the firm was valued at ₹24,000. 24,000 रुपए की goodwill है firm की, जो वैल्यू करके बताई गई है 24,000 दैट इज. सो लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट ₹65,000. लैंड एंड बिल्डिंग पहले 40,000 की थी, अभी 65,000 की होगी. इसका मतलब 25,000 इंक्रीज हो गया. प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000. प्लांट एंड मशीनरी थी आपकी 70,000 की. ठीक है, एंड नाउ इज इट इज वैल्यूड एट ₹60,000. इसका मतलब 10,000 की वैल्यू कम हो गई है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय 400. क्या कह रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय 400. ऊपर ओल्ड प्रोविजन कितने का दिखाया हुआ है? 1,000. क्या कह रहे हैं? 400 रुपए से ज्यादा पाया गया. वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय ₹400. अगर लायबिलिटी ज्यादा पाई गई मतलब था बेनिफिट और ज्यादा दिखा दी गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज आर नाउ बेनिफिट. ओके, the liability of ₹1,200 included in sundry creditors was not likely to arise. 1,200 रुपए की एक लायबिलिटी थी जो पे नहीं करनी थी, जिसे अराइज नहीं करना था, बट इट वॉज इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स रॉन्गली. तो ये भी क्या हो गया? आपका बेनिफिट हो गया. लायबिलिटी थी नहीं, अनक्लेम लायबिलिटी आपकी थी नहीं, उसे डाल दिया गया सन्ड्री क्रेडिटर्स में. इसका मतलब उसको दोबारा से क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. मतलब इट इज benefit for our company, our business, our firm. Okay. Next is the capitals of the partners be adjusted on the basis of C's contribution of capital to the firm. और नए पार्टनर के बेसिस पर C के कंट्रीब्यूशन कैपिटल के बेसिस पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है? एडजस्ट कराना है. बिल्कुल क्लियरली इट इज रिटन. सो इट इज आवर फर्स्ट केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ओके, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स. और जो भी कोई डिफरेंस आता है, बिकॉज पहले क्वेश्चन में क्या होता था, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और उसमें सीडीज हम बैलेंस कर कर निकालते थे. बट इन दिस क्वेश्चन इट इज मेंशन, इट इज अ एडजस्टमेंट कि हमें सी के बेसिस पर, सी की कैपिटल बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स को क्या करना है? एडजस्ट करना है. एंड दीज विल बी बैलेंस सीडी ऑफ ऑल पार्टनर्स. ठीक है, वहां से आपके बैलेंस सीडी निकल कर आएंगे. और जो दोनों के बीच में डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आने वाला है, दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स. ओके, सो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे इसको मैं क्या कहना चाहती हूँ. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले क्या बनाने के लिए कहा हुआ है? रीवैल्यूएशन अकाउंट. Question number 88 of T is given. Okay. Okay. Debit, credit. We know the format. Particulars amount, particulars amount. ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी आपकी? लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट ₹65,000. पहले 40,000 की थी, अभी 65,000 की होगी, मतलब 25,000 से बढ़ गई. बेनिफिट हो गया तो कहां पर आता है? बाय
लैंड एंड बिल्डिंग कितना 25,000, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्लांट एंड मशीनरी है 60,000 हो गया, पहले कितना था 70,000, 60,000 हो गया, मतलब लॉस हो गया, एसेट कम हो गया, तो कहां आता है ऑन द डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय 400, पहले 1,000 का था और जो कि ज्यादा पाया गया, मतलब था 600 रुपए, जिसे गलती से क्या डाल दिया गया 1,000 डाल दिया गया, ये हमारा बेनिफिट हो गया। लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है बेनिफिट हो जाता है। सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, कितने का 400 रुपए का बेनिफिट हुआ है, 400 रुपए डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ ₹1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज, जिसे अराइज करना नहीं था, हमने गलती से सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल दिया, मतलब अगेन लायबिलिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। सो बाय अनक्लेम्ड लायबिलिटी दैट इज 1200, ओके, गॉट इट, क्लियर है यहां तक। और कोई एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की? नो, नहीं है तो काउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 25,000 प्लस 400 प्लस 1200 दैट इज 26,600, ओके। लेस करेंगे कितना है डेबिट में, दैट इज 16,600। चेक कर लेंगे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स तो नहीं है, फिक्स होती है तो एंट्री कहां से पास होती है थ्रू करंट अकाउंट, ठीक है। It is not mentioned in the question whether the capitals are fixed or fluctuating, so we will take the capitals fluctuating, okay. So to profit transfer to capitals account, capital accounts of क्या नाम था A and B, ठीक है। 16,600 है, रेशियो क्या गिवन आपको, रेशियो इज गिवन 3:1, so 16,600 into ratio is 3:1 into 3/4 कितना आ गया 12,450 minus 16,600, so 4,150, okay, got it। यहां तक क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, okay, now we will prepare partners capital account। Partners names are ABC, okay, debit, credit, particulars, okay। So first point is balances, by balance brought down, that is 50,000 and 80,000, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, बैलेंसेस आ गए आपके, ठीक है। उसके बाद कितना कैश लेकर आ रहा है वो, ही इज ब्रिंगिंग हाउ मच कैश 60,000, कितना कैपिटल लेकर आ रहा है बाय कैश अकाउंट 60,000, ओके। कितना कैश लेकर आया 60,000, ओके।
गुडविल आपको कितना गिवन है? 24,000 रुपीज का गुडविल गिवन है, बट इट इज नॉट मेंशन whether a new partner is bringing his share of goodwill in cash or not. ठीक है, तो if it is not mentioned, it means we will take that he is unable to bring his share of goodwill in cash. हम ये मानकर चलेंगे कि वो गुडविल का हिस्सा नहीं लेकर आ रहा है. ठीक है, तो हमने एक एंट्री सीखी थी कि हम उसकी कैपिटल अकाउंट से क्या करते हैं, उस गुडविल को एडजस्ट कराते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन एडजस्टमेंट में आपको गिवन है, क्लियरली गिवन है कि आप क्या खोल सकते हैं, आप क्या ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं. इफ इट इज मेंशन कि आप करंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, एंट्री विल बी, इट मीन्स वी विल टेक सीज कैपिटल की जगह, यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी ले सकते हैं. ठीक है, सो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, सो ये आपका एंट्री रहेगा. सो बाय सीज करंट अकाउंट. ठीक है, करंट अकाउंट में कितना आएगा, इसका कितना था, 24,000 गुडविल था फर्म का. कितना गुडविल था, फर्म का गुडविल था, गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000. ठीक है, एंड सी का शेयर कितना है, सी शेयर ऑफ गुडविल इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर. ठीक है, 1/4 के लिए आ रहा है. सो क्या करेंगे, 24,000 इंटू 1/4, इट मीन 6,000. ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि गुडविल लेकर आ रहा है या नहीं. सो हम क्या लेकर चलेंगे, he is not bringing his share of goodwill in cash, and we know the entry new partners capital account debit to old partners capital account, and we will take the another entry to new partners current account debit to old partners current account, because in this question it is clearly mentioned कि जब एडजस्टमेंट करेंगे और अगर कोई बैलेंस गिरता है we can open the current accounts. ठीक है, so we are taking the entry what, C's current account debit to old partners capital account in which ratio, in sacrificing ratio. Okay, so C का शेयर कितना आ गया, 6,000 आ गया. ठीक है, एंड ये किस कौन सी रेशियो में बटेगा, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. वेरी गुड, कौन सी रेशियो में बटेगा, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1. 3:1 उनको ओल्ड रेशियो दे रखा है, and C is coming for 1/4 share. Only these two things are given. It means it is the good. It's a first case. ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस है. और फर्स्ट केस होता है तो क्या करते हैं, गुड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू द ओल्ड रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होती है, ओल्ड रेशियो के बराबर होती है. ठीक है, सो 6,000 आया आपका, 6,000 इंटू 3/4 एंड 1/4, द अमाउंट विल बी 4,500 एंड 1,500. ठीक है, 3/4 एंड 1/4. ओके, और क्या आएगा, बैलेंस शीट से क्या आने वाला है बताइए, बैलेंस शीट से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा. हाँ जी, क्या आएगा, गुड, जनरल रिजर्व है ना, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट कितना आएगा, 10,000 है. 10,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में. अगेन 10,000 इंटू 3/4, 7,500 एंड 2,500. क्लियर है. नाउ और कुछ गिवन आपको, नॉट गिवन. रीवैल्यूएशन का क्या आया था, हमारा प्रॉफिट आया था बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. प्रॉफिट कितना आया था, ठीक है, कितना प्रॉफिट आया था, 12,450 और 4,150. ओके, और कुछ गिवन नहीं है. क्या करेंगे,
एडजस्टमेंट थी हमारी, उस एडजस्टमेंट को यूज करेंगे। सी के कैपिटल बेसिस पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। सो यही कर देती हूँ मैं। सबसे पहले क्या लेंगे, सी का कैपिटल। सी का कैपिटल कितना था, दिस इज योर वर्किंग नोट एंड इट शुड बी रिटन क्लियरली, ठीक है। इतना बिल्कुल क्लियरली आपको उसको लिखना है, क्लियरली शो करना है, ओके। सो सी का कैपिटल कितना गिवन है, कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, 60,000, ठीक है। एंड ही इज कमिंग फॉर हिज शेयर इज 1/4, ठीक है। जैसे गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन होती थी, गुडविल ऑफ द फर्म के बेसिस पर आप क्या करते थे, नए पार्टनर की गुडविल निकालते थे उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। फर्म की गुडविल गिवन होती थी, फर्म की गुडविल के बेसिस पर आप नए पार्टनर की गुडविल निकालते थे। बिल्कुल ठीक वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही आप क्या करेंगे, नए पार्टनर के आपको कैपिटल गिवन है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर आपको फर्म की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। सो फर्म की गुडविल होती थी तो आप क्या करते थे, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकालते थे। अभी सी की कैपिटल गिवन है और उसका शेयर गिवन है, आपको फर्म की कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, $60,000 इंटू हिज रिवर्स शेयर, वेरी गुड, हिज रिवर्स शेयर, तो कितना आएगा, 6 4 2,40,000, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, डन। इसके बाद अब ये हमारा टोटल कैपिटल फर्म का आ गया, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अमंग ऑल द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, सभी पार्टनर्स के बीच में इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, लेट द प्रॉफिट बी 1, सी शेयर इज 1/4, ठीक है। रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 1 - 1/4, वेरी गुड, कितना आएगा, 3/4। क्लियर है यहां तक, रिमेनिंग शेयर इज 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स की क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज न्यू शेयर, ठीक है। ए का नया शेयर कितना आएगा, ठीक है, कितना शेयर था इसका, 3/4 इंटू दिस 3/4। जिन बच्चों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना आता है, इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, 3 वीडियोस बने हैं टोटल 6 केसेस के ऊपर, ठीक है। दिस इज योर सिंपल केस, यू जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड हैव अ लुक कि वहां पर मैंने सिंपल केस एक वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। सो ए इज न्यू शेयर एंड इट इज मेंशन ऑन द पर्टिकुलर वीडियो की सिंपल केस है, टेक केस है, फ्यूचर केस है, ठीक है। व्हाट द नेम ऑफ केस इज दैट इज मेंशन, ठीक है। सो ए इज न्यू शेयर इज 3/4, ठीक है, 3/4 इसका ओल्ड शेयर था। अब वो कितने में से लेने वाला है, जो रिमेनिंग शेयर है 3/4, सो 3 × 3 9/16। एंड बी का शेयर कितना आएगा, 1/4 इंटू 3/4, 1/4 इंटू 3/4, 3/16। एंड सी का शेयर तो गिवन ही था, दैट इज 1/4। एलसीएम सेम करेंगे, 16 है, कैसे करते हैं एलसीएम सेम, 4/4, 4 4 से 16 होता है, 16 लाना था हमें, 4 4 से 16, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 1 4 4 4 गॉट इट। सो रेशियो विल बी 9:3:4, 9:3:4,
क्लियर है? डन? ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारी रेशोज आ चुकी हैं। हमारी कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई थी, बोलो कितनी आई थी, याद है? 2,40,000। कितनी आई थी? 2,40,000। सो एज शेयर ऑफ कैपिटल, या एज कैपिटल भी लिख सकते हैं, एज कैपिटल 2,40,000 इंटू 9/16, 9/16, ठीक है? कितना आएगा? 4 4 से 16, 4 6 से 24, 60,000, 4 1 से 4, 4 1 से 4, 4 5 से 20, 15 चौके 60, ठीक है? 15 9 से कितना होता है? 1,35,000। 20 कैपिटल, बी की कैपिटल कितनी आएगी? 2,40,000 इंटू 3/16, कट करके कितना आया था? 15,000। सो 15 3 जा 40,000। ओके, एंड सी की तो आपको पता है कितनी थी? हाँ जी, 60,000। ठीक है, क्लियर है? रब कर दूं, डन यहां तक? ओके, ओके। सो बैलेंसेस हमने कितने कितने निकाले इसके? 2 बैलेंस CD, इसका आया 1,35,000, इसका आया 45,000, और इसका तो आपको पता ही था, दैट इज 60,000। ओके, सो ये डायरेक्टली हमने बैलेंसेस निकाल लिए एडजस्टमेंट के थ्रू। सो ओके, सो बैलेंसेस हमने यहां पर निकाल लिए एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है? एंड कोई भी अगर एक्सेस और शॉर्टफॉल होता है वो किससे एडजस्ट होगा? वेरी गुड, थ्रू करंट अकाउंट। किसके थ्रू होगा? थ्रू करंट अकाउंट। 50,000 प्लस 4,500 प्लस 7,500 प्लस 12,450, दैट इज 74,450। इस तरफ कितना बैलेंस आपको नजर आ रहा है? 1,35,000, 1,35,000। ओके, सो 1,35,000 माइनस 74,450, दैट इज 60,550। कहां पे ट्रांसफर होगा? बाय करंट अकाउंट। हुज करंट अकाउंट? एज करंट अकाउंट। बाय एज करंट अकाउंट कितना आएगा? 60,550। ओके, सो इधर कितना बैलेंस है? 45,000, इधर 80,000 प्लस है, इसका मतलब बी को पहले टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड को। 80,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 4,150, दैट इज 88,150। 88,150। इधर बैलेंस कितना है? 45,000। 88,150 माइनस 45,000, दैट इज 43,150 टू बीज करंट अकाउंट। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, नहीं यूज करेंगे कैलकुलेटर, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है, बच्चे फोन में से कैलकुलेटर निकालते हैं और यूज करके फटाफट से कैलकुलेशन करिए, आंसर निकाल दिया। नहीं, अगर आज से हैबिट बनाओगे तो एग्जाम तक आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा कैलकुलेशंस करने का। अदरवाइज क्या होगा? यू नो क्या होगा? बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन छोड़कर आ जाओगे क्योंकि हैबिट होगी नहीं, और वो कैलकुलेशंस करने में इतना टाइम लगेगा कि आपके क्वेश्चंस आते हुए आप छोड़कर आओगे। ठीक है, सो मेक द हैबिट of doing the calculations by yourself.
ओके सो ठीक है, इधर भी 60,000 है, उधर भी 60,000 ऑब्वियसली। सो क्योंकि इसी के बेसिस पर इन दोनों की कैपिटल्स एडजस्ट हुई थी, सो जिसकी वजह से हमने जो भी एक्सेस और शॉर्टफॉल था हमने क्या किया, ट्रांसफर किया थ्रू करंट अकाउंट। ठीक है, एडजस्ट किया थ्रू करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बना लोगे अपने आप? बोलो। चलो बना ही देते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आप ही लोगों ने करने हैं ना। चलो ठीक है, सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका? वेरी गुड, कैपिटल्स आएंगी। ठीक है, कैपिटल्स में कौन कौन है? ए बी सी। सबसे पहले किसका आया था? 1,35,000। दूसरे का आया था 45,000 और तीसरे का था 60,000। ठीक है, टोटल कैपिटल कितनी निकाली थी हमने? 2,40,000। वेरी गुड, 2,40,000। ठीक है, उसके बाद एक क्रेडिटर्स का पॉइंट था। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने के दे रखे आपको? 70,000 के। ठीक है, 70,000 के, जिसमें 1,200 रुपए एराइज नहीं करने थे, आपने गलती से किए थे, तो उसका मतलब लायबिलिटी कम हो गई थी। सो क्रेडिटर्स कितने आएंगे? 70,000 माइनस कितना था अमाउंट? 1,200। सो कितना आ गया? 68,800। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं था लायबिलिटी साइड, नथिंग। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा आपको। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ था? लैंड एंड बिल्डिंग में 65,000 की हो गई थी, बढ़ गई थी, डायरेक्टली गिवन आपको क्वेश्चन में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 60,000 हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 60,000। ठीक है, प्रोविजन वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। ठीक है, 400 रुपए से ज्यादा पाया गया था। 400 रुपए ज्यादा पाया गया था, मतलब लायबिलिटी थी कम, हमने ज्यादा डाली हुई थी। क्या करेंगे? पहले स्टॉक लिख लेते हैं। स्टॉक कितना था? 30,000 का, नो चेंज, एग्जैक्टली सेम। डेटर से कितने के? 35,000 के। ठीक है, 1,000 का ओल्ड प्रोविजन था, अभी कम होकर 600 रुपए रह गया, क्योंकि 400 रुपए ज्यादा पाया गया था, लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, कितना माइनस होगा? 600 प्रोविजन। ठीक है, फाउंड इन एक्सेस बोला था, तो कितना आ जाएगा? 34,400। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं? 26,000। ओके, नो चेंज। और क्या दिया है? कैश, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश। कैश कितने का दे रखा है आपको? 10,000 का। ठीक है,
10,000 का कैश था, कितनी कैपिटल लेकर आया था? 60,000। कितना आएगा? 70,000। 10,000 plus 60,000 is 70,000। ओके, अब और क्या गिवन था हमें, याद करो, आया याद? बोलो। हाँ जी, करंट अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों तरफ बैलेंसेस थे किसके? करंट अकाउंट्स के। ठीक है, तो ए साइड मतलब सॉरी डेबिट साइड कौन कौन सा बैलेंस था? ठीक है, लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया? करंट अकाउंट्स। वेरी गुड, करंट अकाउंट्स का पॉइंट रह गया। ठीक है, करंट अकाउंट्स डेबिट साइड किसका गिरा था? बी का, है ना, बी का। सो बी इज करंट अकाउंट। बोलो कितना है? बी का करंट अकाउंट कितना है? ठीक है, बी का करंट अकाउंट कितना था? 43,150। ठीक है, मुझे यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा, मैं यहीं पर डाल रही हूँ। ठीक है, ऊपर। सो इधर ए का करंट अकाउंट आया था, एज करंट अकाउंट कितना था? 60,550। याद है? डेबिट साइड आप लोगों ने लिखा ही होगा, लिखा था ना? ठीक है, सो बी का करंट अकाउंट कितना था? 43,150। इस तरफ क्या था? ए का करंट अकाउंट आया था हमारा बैलेंस 60,550। एक पॉइंट और था, कौन सा? सी का करंट अकाउंट। बाय सी इज करंट अकाउंट 4,500 and 1,500 फॉर गुडविल। ठीक है, उसे भी डाल देंगे। सी इज करंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 6,000। मुझे स्पेस नहीं मिला इसलिए मैंने यहां पर डाला, आप लोग ऐसे नहीं डालेंगे। ठीक है, सो टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट को। ओके, टोटल कीजिए, कैलकुलेटर से नहीं, हाथ से। ठीक है, सो 2,40,000 प्लस 68,800 प्लस 43,150। ठीक है, 351,950। 351,950। चेक कर लो दूसरी साइड भी। 60,550 प्लस 65,000 प्लस 6,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 34,400 प्लस 26,000 प्लस 70,000। करेक्ट, 3,51,950। ठीक है, क्वेश्चन करने में मजा तब आता है जब बैलेंस शीट टैली हो जाए, और वो भी इन हाँ जी एक बारी में। ठीक है, और वो तभी आती है जब हमें सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और वन बाय वन हम क्वेश्चन को करेंगे। एंड मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, रिवेल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई, और एक फ्लुएंसी से बन जाती है। अगर हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, सो जिन भी बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, क्योंकि बच्चों का अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट गलत है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिस्टेक हो जाता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिस्टेक होगा ऑब्वियसली बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं करेगी। ठीक है, सो got it? This is the first adjustment of capital. We will do the another adjustments and the next video. And आप लोगों को समझाते हुए इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन को फ्लुएंसी में करेंगे, ठीक है, एंड यू विल डू, हाँ जी, 15 to 16 मिनट्स आपको करना ही है, डेफिनेटली करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने मिनट्स में आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल कम इनटू योर एग्जाम एग्जैक्टली ऑफ
8 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 15 से 16 मिनट मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर, 16 मिनट के अंदर अंदर मैक्स टू मैक्स आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। सो I hope you got the concept very well, the adjustment, the first adjustment. Okay, we will do the second adjustment in our next video. Okay, so, and if you really like this video, like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos. Thanks, have a nice day. Jai Shri Krishna ji.